அனைவருக்கும் வணக்கம். கோல்டு மெடலிஸ்ட் இந்திய கைட் வழங்கும் கற்க கசடர நிகழ்ச்சிக்கு தங்களை வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். सबको सादर प्रणाम. गोल्ड मेडलिस्ट हिंदी गाइड प्रस्तुति कर्क कसडर कार्यक्रम पर आप सबका हार्दिक स्वागत है. जैसा कि मैंने कल कहा था, हम लिखने में और बोलने में जो अशुद्धियाँ करते हैं उनको सुधारने का प्रयत्न हम कर रहे हैं. सुधार करके शुद्ध भाषा, शुद्ध हिंदी बोलना हम सीख लें. इसी उद्देश्य से ये कार्यक्रम चल रहा है. पिछले एपिसोड में भी हमने उसके बारे में कुछ झांकी पाई और आज भी इसी शीर्षक पर अध्यापन चालू है. நேயர்களே, தூய ஹிந்தி பேசுவது எழுதுவது எப்படி என்பது குறித்து நாம் கடந்த சில பதிவுகளே பார்த்தோம். அதே பதிவு இன்றும் தொடர்கின்றது. அதன்படி இன்றைய சில பதிவை தங்களுக்காக அதே சுத்த கீழ்ச்சியே என்னும் தலைப்பிலே நான் தரவிருக்கிறேன். கைவசம் நோட்புக் வைத்திருந்தால், மாணவர்களாக இருந்தால் தயவுசெய்து குறித்து கொள்ளுங்கள். ஏனென்றால் நான் கரும்பலகையிலே ஆன்சர் எழுதவில்லை, கேள்வியை மட்டும் தந்திருக்கிறேன். அதற்கான பதிலை நான் இப்பொழுது தரவிருக்கிறேன். ஆகவே நீங்கள் அதை குறித்து கொண்டால் உங்களுக்கு மிகவும் எளிதாக இருக்கும் என்று கருதுகிறேன். இல்லை என்றால் இந்த வீடியோவை மறுபடியும் பாருங்கள், மீண்டும் பாருங்கள். பார்த்து நீங்கள் உங்களுடைய அந்த ஹிந்தி மொழி அறிவை வளர்த்துக் கொள்ளுங்கள் என்று வேண்டிக்கொண்டு இன்றைய பதிவை தொடங்குகின்றேன் உங்கள் அனுமதியுடன். முதல் வாக்கியம். गुलाब के पौधे पर मैंने कई फूलों को देखा. गुलाब के पौधे पर मैंने कई फूलों को देखा. इसका आंसर है गुलाब के पौधे पर मैंने कई फूल देखे. गुलाब के पौधे पर मैंने कई फूल देखे. यहाँ पर फूलों को देखा नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब ने आ गया ना तो कर्म के अनुसार क्रिया बनती है और कर्म के साथ को विभक्ति लगने पर उसकी क्रिया क्या है, आ के रूप में बदलती है. यहाँ पर देखा सही है, लेकिन यहाँ पर को हम नहीं लगा सकते, क्योंकि ऐसे वाक्यों में ये कर्म ऑब्जेक्ट सैपगुल जो है वो अगर प्राणीवाचक हो तो हम को लगा सकते हैं. அதாவது அந்த வாக்கியத்தில் வருகின்ற மே வருகின்ற வாக்கியத்தில் வருகின்ற செயற்பொருள் உயிருள்ள பொருளாக இருந்தால் மட்டும்தான் நாம் அத்தோடு கோ சேர்க்க வேண்டும், இல்லாவிட்டால் கோ சேர்க்கக்கூடாது. இங்கே பூல் என்பது உயிருள்ள பொருள் அல்ல. ஆகவே அந்த பூலோங்கோ என்ற வாக்கியம் வரக்கூடாது, அது தவறானது. ஆகையாத்தான் நான் சொன்னேன், गुलाब के पौधे पर मैंने कई फूल देखे. இரண்டாவது, तुम इसको दाम देते जाओ. तुम इसको नहीं, इसके दाम देते जाओ. இதனுடைய விலையை கொடுத்துவிட்டு போ. तुम इसके दाम देते जाओ. डाकू कई हजारों रुपये
लूट ले गए। डाकू कई हजारों रुपये लूट कर ले गए। डाकू हजारों रुपये लूट कर ले गए। यहाँ पर हजारों काफ़ी है, उसी में कई और अनेक क्या शामिल है, वो जुड़ गया है, अंडरस्टूड है, इसलिए यहाँ पर कई की ज़रूरत नहीं है। डाकू हजारों रुपये लूट कर ले गए। अगला, इसमें पैसे खर्च होता है। इसमें पैसे खर्च होंगे, क्योंकि अभी तो खर्च तो करने वाले हैं, तो वो कहाँ पर आता है? भविष्य काल में आता है, इसलिए इसमें पैसे खर्च होंगे आना चाहिए। और उन्हें लाख रुपया मिल गया। उन्हें लाख रुपया मिल गया। यहाँ पर लाख शब्द बहुवचन है, इसलिए उन्हें लाख रुपये मिल गए। उन्हें लाख रुपये मिल गए सही आंसर है। और लगता है मानसून आ गई। लगता है मानसून आ गई। பருவகாலம் பருவமழை வந்தது போல் தெரிகிறது. நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் வேறு, தமிழ்நாட்டிலே விவசாயிகள் எதிர்பார்ப்பார்கள் இந்த பருவமழையை. ஆனால் வடநாட்டிலே இந்த பருவமழையை அனைவரும் எதிர்பார்ப்பார்கள். நகரவாழ் மக்களும் கிராமத்து வாழ் மக்களும் எல்லோருமே எதிர்பார்ப்பார்கள். அதை இந்த முதல் மழை என்பார்கள். அந்த முதல் மழையை எல்லோரும் ரசிப்பார்கள். அதாவது அந்த முதல் மழை பெய்கின்ற பொழுது அனைவரும் ரோட்டிலே போய் நின்று கொண்டு அந்த மழையிலே நனைவார்கள். நனைந்து அந்த குளிர்ச்சியை அனுபவிப்பார்கள். இந்த விஷயத்தை அன்றாடம் டிவியிலே ஒளிபரப்புவார்கள். இன்றைக்கு இந்த நேரத்திலே மான்சூன் பருவமழை பெய்யப் போகிறது என்று சொல்லிக்கொண்டே இருப்பார்கள். அதை கேட்டுக்கொண்டு மக்கள் தெருக்கு போவார்கள். நான் நேரில் பார்த்துருக்கிறேன். அந்த மழையில் நான் நனைந்தும் இருக்கிறேன். சில சமயங்களில் மான்சூன் ஏமாற்றிவிடும். இரவிலே வருகின்ற பொழுது மக்கள் ஏமாந்து போவார்கள். அப்போதும் சில பேர் வந்து மொட்டை மாலையில் நின்று கொண்டு அந்த முதல் மழையின் சுகத்தை அனுபவிப்பார்கள். ஆகவே அந்த மான்சூன் என்பது, முதல் மழை என்பது, பருவமழை என்பது அங்கே வடநாட்டிலே நான் அதை பார்த்து மும்பையிலே பார்த்தேன். மும்பையிலே பார்த்தேன். மிக அதிகமாக அது வரவேற்கப்படுகிறது. ஆகவே இந்த வாக்கியம் देखिए, लगता है மான்சூன் ஆ கயி என்று இருக்கிறது. மான்சூன் என்பது பருவமழை. மழை என்பது மான்சூன் ஆண்பாசல் புல்லிங் शब्द है. ஆகவே இங்கே लगता है மான்சூன் ஆ கயா என்று வர வேண்டும். அதுவே சரியானது. लगता है मानसून आ गया. और लड़के और लड़कियां पढ़ रही हैं. लड़के और लड़कियां पढ़ रही हैं. अच्छा, लड़के और लड़कियों पढ़ रही हैं. लड़के और लड़कियां ही आना चाहिए. यहाँ पर स्त्रीलिंग भी है, पुल्लिंग भी है. अगर दोनों हो तो उसे स्त्रीलिंग में ही हमें लेना चाहिए. सो यहाँ पर लड़के और लड़कियां पढ़ रहे हैं, नॉट रही हैं, रहे हैं. लड़के और लड़कियां पढ़ रहे हैं. और उपदेश पढ़कर पाठक की आंख खुल गई. उपदेश पढ़कर போதனைகளை படித்ததால் மக்களுடைய கண்கள் திறந்தன. அதாவது அவருக்கு அறிவு வந்ததுன்னு சொன்ன அர்த்தம். उपदेश पढ़कर पाठकों की आंखें खुल गई. पाठकों की आंखें खुल गई. வாசகர்களுடைய கண்கள் திறந்தன. வாசகர்களுக்கு அறிவு வந்தது, புத்தி வந்தது. उपदेश पढ़कर पाठकों की आंखें खुल गई. और उसके बाद है कमला की आंखें से आंसू बह रहा है. कमला की आंखें से आंसू बह रहा है. कमला की आंखें सही है. उसके बाद जो से आ गए ना, मैंने कल भी कहा था, स्त्रीलिंग शब्द हो या पुल्लिंग शब्द हो, उसके बहुवचन होने पर उसके आगे कोई कारक चिन्ह आवे तो वो ये आ या वो में बदल जाएगा.
इसलिए यहाँ पर आंखें नहीं, आंखों। कमला की आंखों से आंसू बह रही है नहीं, बह रहे हैं, क्योंकि आंसू पुल्लिंग है, आंसू बह रहे हैं। कमला की आंखों से आंसू बह रहे हैं। और अनेकों स्त्री पुरुष वहाँ आए थे। अनेकों स्त्री पुरुष वहाँ आए थे। मैंने अभी देखा, वो कब आता है? जब वो संज्ञा चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, जब बहुवचन होती है और उसके आगे कोई कारक चिन्ह आता है तभी ओ में बदलता है। इसलिए यहाँ पर अनेकों नहीं आएगा, अनेक। अनेक स्त्री पुरुष वहाँ आए थे। अनेक स्त्री पुरुष वहाँ आए थे। अनेक स्त्री पुरुष वहाँ आए थे, यही सही है। और उसके बाद उन्होंने हाथ जोड़ा। उन्होंने हाथ जोड़ा। यहाँ पर हाथ जोड़ना का मतलब दोनों हाथ जुड़ते हैं, इसलिए यहाँ पर हाथ बहुवचन है, इसलिए उन्होंने हाथ जोड़े। उन्होंने हाथ जोड़े, ये करेक्ट है। और கரங்களை கூப்பினார்கள். கரம் கூப்பினார்கள் தமிழ் சொல்லுவாங்க, ஆனால் கரம் கூப்பினார்கள், கரங்களை கூப்பினார்கள். और हर एक आदमी आएंगे। हर एक आदमी एक वचन है, इसलिए हर एक आदमी आएगा। ஒவ்வொரு மனிதனும் வருவான்। हर एक आदमी आएगा। उनके पास बहुत रुपये हैं। उनके पास बहुत सोने हैं। उनके पास बहुत सोने हैं। सोने का बहुवचन नहीं होता। उनके पास बहुत सोना है। அவரிடம் நிறைய தங்கம் இருக்கிறது। उनके पास बहुत सोना है। मैंने पीतलें खरीदा। पितलेகள் வாங்கினேன்। मैंने पीतलें खरीदा। पीतल एक वचन है। मैंने पीतल खरीदा। मैंने पीतल खरीदा। हर चित्र बुरे नहीं होते। हर चित्र ஒவ்வொரு படமும் கெட்ட படமாக இருக்காது। यहाँ पर बुरे नहीं होते नहीं आना चाहिए। हर चित्र बुरा नहीं होता। हर चित्र बुरा नहीं होता। हर चित्र बुरा नहीं होता। और मैंने राम को 1 रुपया पूछा। நான் ராமனை 1 ரூபாய் கேட்டேன்। मैंने राम से 1 रुपया मांगा। पूछा नहीं, मांगा। यहाँ पर கேட்பது கேட்க என்பதற்கு हिंदी सुनना, पूछना और मांगना மூன்றுமே கேட்பதுதான் தமிழிலே। ஆனால் ஆங்கிலத்திலே ஆஸ்க் என்பார்கள், டிமாண்ட் என்பார்கள், ஹியர் என்பார்கள்। ஹியர்ங்கிறது சுன், பூச்ங்கிறது ஆஸ்க்ங்கிறது பூச்சு, டிமாண்டுங்கிறது மாங்கு। डिमांड தான்। मैंने राम से, राम को नहीं, राम से, रामनिடத்தில், मैंने राम से 1 रुपया मांगा। पूछा नहीं आना चाहिए। தமிழை கரெக்டாக இருக்கு பாருங்க। நான் ராமனை 1 ரூபாய் கேட்டேன்। நான் நேற்றைய பதிவில் சொன்னேன், டைரக்ட் டிரான்ஸ்லேஷன் கூடாது, நேரடி மொழிபெயர்ப்பு செய்யக்கூடாது என்றேன்। அதுபோல இங்கே मैंने राम से 1 रुपया मांगा। पूछा नहीं, मांगा। और मैंने उसके पास कहा। நான் அவனிடத்தில் சொன்னேன்। के पास இடத்தில் பக்கத்தில் ப்ரிபோஷன் அல்லவா? ஆனால் இங்கே நான் मैंने उससे कहा हूँ। मैंने उसके पास कहा नहीं आना चाहिए। मैंने उससे कहा। और मैं कल तुमको मिलूँगा। मैं कल तुमको मिलूँगा। நான் நாளை உன்னை சந்திப்பேன்। तुमको சரியாக இருக்குது, ஆனால் தப்பு। ஏனென்றால் मिल जब आता है तो से आएगा। मैं तुमसे मिलूँगा। भरत राम से मिला। भरत राम को मिला नहीं। राम गुह से मिले। राम विभीषण से मिले। जब मिलना क्रिया आती है तो को नहीं होता है, आता है
और से आना चाहिए। यहाँ पर मैं कल तुमसे मिलूँगा सही है। मैं कल तुमसे मिलूँगा। नान नाड़े उन्हें संदीपेन, मैं कल तुमसे मिलूँगा। और सब लोग उसको तारीफ करते हैं। सब लोग उसको तारीफ करते हैं। எல்லோரும் அவனை புகழ்ந்து பகிர்கிறார்கள்। यहाँ पर तारीफ स्त्रीलिंग होती है, इसलिए सब लोग उसकी तारीफ करते हैं। सब लोग उसकी तारीफ करते हैं। और तुम्हारा नाम लिखो। तुम्हारा नाम लिखो। तुम अपना नाम लिखो। यहाँ पर दो बार नहीं आना चाहिए। एक ही स्थान पर दो सर्वनाम शब्द नहीं आना चाहिए। तुम तुम्हारा, मैं मेरा, वो उसका, हम हमारा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए उसको पहले क्या क्या करना चाहिए? अपना का यूज़ करना चाहिए। अपना, अपने, अपनी। यहाँ पर नाम पुल्लिंग शब्द है, इसलिए अपना। तुम अपना नाम लिखो। तुम अपना नाम लिखो। तुम अपना नाम लिखो। इस प्रकार हम शुद्ध वाक्य बना सकते हैं और शुद्ध वाक्य बोल सकते हैं और शुद्ध वाक्य लिख सकते हैं। जो पिछले 3-4 एपिसोड में इसी शिष्य को लेकर मैंने अध्यापन किया था। आशा है कि आपको पसंद आ गया होगा। अब समझ गए होंगे, ये मेरी उम्मीद है। और साथ ही आप हमारी जो चैनल है उसका सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में बांटिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपना विचार मुझे बताइएगा। वो मेरे लिए एक प्रोत्साहन होगा। और दोबारा एक बार, गुलाब के पौधे पर मैंने कई फूलों को देखा। गुलाब के पौधे पर मैंने कई फूल देखे। गुलाब के पौधे पर मैंने कई फूल देखे। और मैंने कई फूल, तुम इसको दाम देते जाओ। तुम इसके दाम देते जाओ। तुम इसके दाम देते जाओ। तीसरा है, डाकू कई हज़ारों रुपये लूट कर ले गए। डाकू हज़ारों रुपये लूट कर ले गए। डाकू हज़ारों रुपये लूट कर ले गए। इसमें पैसे खर्च होता है। इसमें पैसे खर्च होंगे। इसमें पैसे खर्च होंगे। और उन्हें लाख रुपया मिल गया। उन्हें लाख रुपये मिल गए। उन्हें लाख रुपये मिल गए। लगता है मानसून आ गई। लगता है मानसून आ गया। लगता है मानसून आ गया। तुमको और लड़के और लड़कियां पढ़ रही हैं। लड़के और लड़कियों पढ़ रहे हैं। लड़के और लड़कियां पढ़ रहे हैं। और उपदेश पढ़कर पाठक की आंख खुल गई। उपदेश पढ़कर पाठकों की आंखें खुल गई। उपदेश पढ़कर पाठकों की आंखें खुल गई। कमला की आंखें से आंसू बह रहा है। कमला की आंखों से आंसू बह रहे हैं। कमला की आंखों से आंसू बह रहे हैं। अनेकों स्त्री पुरुष वहाँ आए थे। अनेक स्त्री पुरुष वहाँ आए थे। उन्होंने हाथ जोड़ा। उन्होंने हाथ जोड़े। उन्होंने हाथ जोड़े। तो भी हर एक आदमी आएगा। हर एक आदमी आएंगे। यहाँ पर हर एक आदमी आएगा। और उनके पास बहुत सोने हैं। उनके पास बहुत सोना है। सोने का बोझ नहीं होता। उनके पास बहुत सोना है। और मैंने पीतलें खरीदी। मैंने पीतलें खरीदा। मैंने पीतल खरीदा। पीतलें नहीं आता, वो बोझ नहीं होता। मैंने पीतल खरीदा। हर चित्र बुरे नहीं होते। हर चित्र बुरा नहीं होता। हर चित्र बुरा नहीं होता। और मैंने
राम को 1 रुपया पूछा। मैंने राम से 1 रुपया पूछा। मैंने राम से 1 रुपया पूछा। और मैंने उसके पास कहा। मैंने उसके पास कहा। मैंने उससे कहा। मैंने उससे कहा। मैं कल तुमको मिलूँगा। मैं कल तुमसे मिलूँगा। मैं कल तुमसे मिलूँगा। सब लोग उसके तारीफ करते हैं। सब लोग उसकी तारीफ करते हैं। सब लोग उसकी तारीफ करते हैं। और तुम तुम्हारा नाम लिखो। तुम अपना नाम लिखो। तुम अपना नाम लिखो। इस प्रकार हमें शुद्ध हिंदी लिखना और शुद्ध हिंदी बोलना चाहिए और इसका आदत बना डालें, क्योंकि आदत एक बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है। बार बार लिख कर देखिए। लिखने का काम जारी रखें। आजकल लिखना बहुत कम हो गया है। जब हम जवान थे उस समय बहुत लिखा करते थे, आज भी लिखा करते हैं। पहले हम पत्र लिखना सीखते थे। एक पत्र लिखना एक अनोखी कला है। इसके द्वारा दिल का आवागमन होता है। दिल का परिचय होता है। दिल की पहचान होती है। दोनों दिल आपस में मिलते जुलते हैं उस पत्र के जरिए। इसलिए पत्र लिखना एक बढ़िया आदत है। लेकिन आजकल वो तो सब चला गया है, क्योंकि सेलफोन आने से सभी बातें तुरंत तुरंत बोल लेते हैं और व्हाट्सएप में भेज देते हैं, वो अलग बात है। लेकिन क्या होता है, इससे हम सुस्त पड़ गए, आलसी बन गए। जब हम सेलफोन के गुलाम बन गए हैं तो इसके द्वारा हम आलसी बन गए। किसी भी बात को लिखना हम नहीं चाहते या बोलना भी नहीं चाहते, उसके बेटा टाइप करके भेज देते हैं। ये भी कम करते हैं। लेकिन जहाँ तक हो सके तो वैज्ञानिक उपकरणों ने हमें हमारे समय को कम किया है। फिर भी क्या है, हमारा जो ज्ञान है, हमारा जो ज्ञान का विकास होता था उसके द्वारा वो बहुत कम हो गया है। लेकिन मैं जो जवानी में भी लिखता था, अब भी लिख रहा हूँ। रोज़ लिखता हूँ। रोज़ आधा घंटा 2 घंटे लिखते ही रहूँगा, कोई ना कोई। आपके वास्ते जो मैं ये वर्क ले रहा हूँ ना, इसके लिए भी वो सवाल का जवाब मैं रोज़ लिखते ही रहता हूँ। प्रिपरेशन करते ही रहता हूँ। प्रिपरेशन करने के बाद ही आपके पास आता हूँ, आपके सामने आता हूँ और आपको सुनाता हूँ। इसलिए जहाँ तक हो सके आप लिखने का अभ्यास जारी रखें। एक बार लिखना 100 बार पढ़ने के बराबर है। 100 बार पढ़ना और एक बार लिखना दोनों समान हैं। इसलिए लिखने की आदत आप बना रखिए। लिखिए लिखिए लिखिए, उसके द्वारा अपना ज्ञान बढ़ा लीजिए, क्योंकि अभ्यास के द्वारा ही ज्ञान बढ़ता है। रोज़ हम सुनते हैं वो अलग बात है, लेकिन उसको हम भूल जाएंगे। वो तो स्वाभाविक है, मनुष्य के लिए स्वाभाविक है। लेकिन उसको अगर नहीं भूलना हो तो उसको लिखना चाहिए। लेखन में लाने से वो मूल जो है वो हमको मालूम हो जाएगी। इसके कारण कहीं व्याकरणिक अशुद्धियाँ भी नहीं होगी। मैं जब लिखता था, लेख लिखता हूँ और नोट्स लिखता हूँ ना, गाइड लिखता हूँ ना, मैंने अनेक गाइड प्रकाशित किए हैं। प्राथमिक से लेकर प्राइवेट उत्तरा तक के लिए मैंने गाइड तैयार किए हैं। और सारे गाइड जब मैं लिखता हूँ ना, अगर कहीं व्याकरणिक अशुद्धि हो तो मेरी कलम आगे नहीं जाएगा, रुक जाएगा। सोचूंगा क्यों रुक गई मेरी कलम। तो बात यह है, कहीं अशुद्धि है, अशुद्धियाँ हैं तो मैं उसको चेक करूँगा, दोबारा वापस आऊँगा। वापस आने पर मुझे मालूम होगा कि यहाँ पर अशुद्धि मैंने की है, तो मैं उसको सुधार लूँगा। इसलिए लिखते रहने से क्या होता है, हमारी
भाषा की, व्याकरण की या स्पेलिंग की भी अशुद्धियाँ पूरी हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। इसलिए लिखने का अभ्यास जारी रखें। रोज़ का ये मेरा कक्षा जो है, मेरी कक्षा जो है, मेरा ये एपिसोड जो है, वीडियो जो है, आप देखें, सुने और लिखते रहें। लिखने का अभ्यास करते रहें तो आपके लिए एक बड़ी मोटी पोथी बन जाएगा। जो रोज़ आप सुनते हैं ना, उसको लिख कर कहेंगे तो वो एक बड़ी पोथी बन जाएगी। वो आपके बाद आपके आपकी संतान के लिए एक वर प्रसाद बन जाएगा, बोन बन जाएगा। लोग आपकी संतानें ये कहेंगे, देखिए मेरे पापा ने इतने लिखे हैं, इतने पढ़े हैं। ये सब आपकी प्रतिभा के लक्षण के रूप में रहेंगे। जितना भी आप सुनते हैं और देखते हैं सेल फोन में, वो घुल जाएगा, वो गल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आपकी पोथी जो है रहेगी, रहेगी, रहेगी है। इसलिए जहाँ तक हो सके आप लिखने का अभ्यास जारी रखिए। यही मेरी आपसे सविनय प्रार्थना है। आपकी समय के आधार पर जितना समय मिलता है, समय के मिलने पर उस समय को बेकार मत जाने दें। कुछ ना कुछ लिखते रहें। इससे आपकी बुद्धि का विकास होगा, आपके ज्ञान का विकास होगा। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। और इसके साथ मैं आज का ये एपिसोड ख़त्म करना चाहता हूँ। कल एक नए शीर्षक के साथ इसी प्रकार व्याकरणिक अशुद्धियाँ, व्याकरणिक तरीके, इन सब के बारे में मैं एनालाइज कर रहा हूँ, करके आपको बता रहा हूँ। वो करके कल आपसे मिलूँगा। और तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ. நாளை இன்னும் ஒரு புதிய தலைப்புடன் இதே போன்று இலக்கணம் சம்பந்தப்பட்ட தலைப்புடன் தங்களை சந்திக்க விளைகிறேன். அதுவரைக்கும் விடைபெறுவது தங்களின் ஆர் सुंदरराजन, திருப்பூர், तमिलनाडु. तब तक के लिए आपसे विदा लेने वाला आपका सेवक आर सुंदरराजन, திருப்பூர், तमिलनाडु. धन्यवाद, नंदी, धन्यवाद, नंदी, धन्यवाद, नंदी. जय हिंद.